Welcome to the graphology demo session. We will be talking in brief about graphology. The language which I will be using during the course will be Hindi and English. I hope everyone is comfortable with both the language. Sound is my sound audible? Is my voice audible to all? Yes, sir. Yes, sir, it's very clear. Very clear. Please, whoever is not, can check their own microphone settings and increase their volumes for their laptop machines or phones. So before I start, I would like to understand from you guys, आप graphology का क्या मतलब समझते हैं and what is graphology for everyone? I think you would have attended a lot of graphology other courses also since you have shown interest in this. So what is graphology for you all? What do you understand by graphology? You can speak up so we can will make this. We're not many participants here. We can make this as interactive session. Not a problem. Yes, so for me, graphology, what I understand is it's analysis for your handwriting and signature. Yes. So graphology, handwriting signature से भी ज़्यादा है. It is not just, it is anything which you print from your hands, which you write, which you draw, which you write, or which you even scribble with your hands. उसको पढ़ने की art is your graphology. It is not the content, it is how you write. That is what graphology is. उसको हम graphology बोलते हैं. Abhi, I'll share a presentation. I'll share a short presentation. Any questions if you have, I would like to address it at the beginning of the session, and I will take questions after we complete one topic after another. So I will request everyone to be on mute. I don't want to be, uh, on a very strict teacher जो जबरदस्ती म्यूट करे सबको मैं वो नहीं करूँगा. So I will request everyone to be self disciplined enough. आप अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा. So I'll just without wasting much of the time, I'll just start immediately with the graphology. Before we start, I'll just give you a small introduction about ourselves. We are me and my wife, Minakshi Avasti. We are part of this astrometry. We have formed this organization called Astrometry, where we offer consultations and courses in all these lines. You would have been seeing this slide for quite some time now. So basic astrology we do Nadi astrology, advanced Nadi astrology. Then there is Vedic numerology, advanced predictive Vedic numerology, which over the period of last 6 months, more than say 300 people have already gone through this advanced course. The free course is available on YouTube as a free basic course is available on YouTube. You can go through that on numerology. Graphology is again because Vedic numerology, there's a big connection between numerology and graphology. जैसे आप सिग्नेचर करते हैं आपके सिग्नेचर में और आपके डेट ऑफ बर्थ में there is a huge connection which we discover in numerology. Then we offer courses in palmistry, face reading. All these courses earlier before lockdown was done face to face or in person. Now the technology and lockdown has forced us to uh, do it online now. So palmistry and face reading पहले लगता था कि हम लोग नहीं कर सकते हैं, online possible नहीं है, but it is very much possible. We have done a lot of courses on this also, and a lot of people have benefited on this. Tarot is something which we do, and then there are a lot of small time workshops which we offer on self hypnosis, 7 days, 7 chakra, effective parenting, cord cutting, mudra, and dowsing. So these are the things which we offer. I have a brief introduction about myself. My name is Saurabh Avasti. I have done, I'm actually a sales and marketing professional from my pedigree. So I've done, I'm in graduation in MBA, and then I've jumped into this after leaving my corporate life into occult. Occult में भी I did my astrology, Nadi astrology, numerology, and I've been practicing this since last 10 years. And then I did my, because ये astrology में सारे answers नहीं मिलते हैं हर चीज़ के. So मुझे, and I find a great connect between psychology and astrology. So then I did my master's, my practitioner level in neuro linguistic programming. Then I did my master's
in neuro linguistic programming, and then studied psychology a lot, and then yes, graphology is again related to psychology, and it has a little bit predictive element in it. तो वो सारी चीजें करने के बाद now we have been doing courses on this and we've been doing consulting on this. So when I consult, I use numerology, graphology and astrology, all three put together to assess. In fact, जैसे astrology में बहुत सारे cases आते हैं हमारे पास on matchmaking. So matchmaking में गुण मिलान, कितने गुण मिले कुंडली में, उससे ज़्यादा I prefer handwriting कितनी मिलती है दोनों की. How do you study handwriting of those two people to understand their temperament, their nature, वो ज़्यादा important है, तो हम उस पर जोर देते हैं. So that is how I use graphology in my predictive consultations. अब आप कैसे यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, हम वो होता क्या है ग्राफोलॉजी, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं. व्हाट ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड व्हाट ऑल वी विल स्टडी, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ग्राफोलॉजी, वो हम थोड़ा सा एक बार ब्रीफ में पढ़ेंगे. So what we will do is we'll history and introduction to graphology थोड़ा सा पढ़ेंगे. Scope of graphology, अब क्या कर सकते हैं graphology करने के बाद, वो हम थोड़ा सा समझेंगे. कुछ भी नहीं कर सके, करियर में नहीं भी बनाना, कम से कम अपनी लाइफ और अपने बच्चों की लाइफ, और क्या करने वाले बच्चों की लाइफ में चल क्या रहा है, या आपकी लाइफ में भी क्या चल रहा है, या आपके पार्टनर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, वो आप जरूर समझ सकते हैं हैंड राइटिंग देख के. एक हैंड राइटिंग सैंपल भी हम उसका एनालिसिस भी करेंगे. जेस्टॉर्ड मेथड, कंपोनेंट ऑफ हैंड राइटिंग क्या होता है, उस पर कितने कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं, वो हम करेंगे. एंड ट्रेट मेथड, अल्फाबेट्स करेंगे. और सिग्नेचर एनालिसिस, क्या कैसे सिग्नेचर को एनालिसिस करते हैं सिग्नेचर का, वो पढ़ेंगे. डूडल्स, जो हम लोग खाली बैठे होते हैं जब हम कोई भी स्क्रैचिंग स्क्रिबलिंग करते हैं, वो हम करते हैं, वो चीज पढ़ेंगे. एंड हम बाकी और देन विल गो थ्रू व्हाट आर द कोर्सेज ऑफर्ड ऑन ग्राफोलॉजी. So let's not waste more time and get on to the study of graphology. What is graphology? Graphology is basically, in simple शब्दों में कहें तो, study of handwritten material on any surface. So study of handwritten material on any surface is graphology. Any impression which you make, a dot, a line, a scratch, कुछ भी आप हाथ से बनाएंगे किसी भी सरफेस पे, उसको हम ग्राफ कहते हैं. डॉट, डॉट आपने ग्राफ पेपर देखा होगा, बचपन में हमने ग्राफ पेपर यूज किया है काफी स्कूल में. तो ग्राफ पेपर में डॉट्स होते हैं छोटे छोटे, उनको हम ज्वाइन करते हैं. तो वो एक डॉट आपने बनाया, तो डॉट बनाने में आप समझ लीजिए देयर इज लॉट ऑफ इंटरनल एक्टिविटी विच हैपेंस इवन इन मेकिंग अ डॉट. एंड क्योंकि हम लिखते हैं अपना थंब और इंडेक्स फिंगर्स को पकड़ के, थंब और इंडेक्स फिंगर अगर आप थोड़ा सा इसको मैं आपको न्यूरोसाइंस की तरफ लेके जाऊं, तो हमारा राइट हैंड जो है रिप्रेजेंट्स योर लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, योर लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट द राइट साइड ऑफ द ब्रेन. एंड ब्रेन की जो नॉट गेटिंग टू मेजर उसमें, बट इन ब्रीफ, थंब का जो प्रोपोर्शनेट जगह है आपके ब्रेन में, वो सबसे ज्यादा ऑक्यूपाई करता था. एंड देयरफॉर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू राइट. So even a single dot which you put on a piece of paper, there's 8 billion cells in your neurons in your brain which function, and then वो होता है, हमें पता नहीं चलता, हम तो वैसे ही लिख देते हैं. So on any surface, so अगर आप देखें हमारे जितने भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले जो लोग हैं, जो पुरानी किसी भी केव के अंदर जो केवमैन पेंटिंग्स बनाते थे, या कुछ भी लिखते थे, कुछ इमेजेस बनाते थे, उसको डिसाइफर करते थे. उसको पढ़ने का तरीका भी, पत्थर पे लिखा हो, सैंड पे लिखा हो, पेपर पे लिखा हो, ट्री पे लिखा हो, कहीं पर भी लिखा हो. बहुत सारे जो हमारे लवर्स हैं, वो पेड़ों पे अपना नाम लिख देते हैं. तो वो भी, उसको भी पढ़ने की, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, उसको भी आप समझ सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है. तो ये सारी चीजें, एनी सरफेस विच यू राइट ऑन एनी लैंग्वेज विच यू राइट ऑन, and but it has to be hand written, that is only important. वो उसकी स्टडी को हम ग्राफोलॉजी कहते हैं. इनफैक्ट फ्यू पीपल इसको कुछ लोग ब्रेन राइटिंग भी कहते हैं, बिकॉज इट इज द ब्रेन विच इज राइटिंग, इट इज नॉट यू हु इज राइटिंग. आप सोचेंगे कि मैंने लिखा, बहुत सुंदर लिखा मैंने, बहुत सुंदर आप लिखे, आपका अगर मान लीजिए आपके राइट हैंड से आप लिखते हैं और राइट हैंड में चोट लग जाए, आप नहीं लिख पा रहे, तो आप लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करेंगे. जब आप लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करेंगे, आप देखेंगे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के अंदर आपकी हैंड राइटिंग बिल्कुल सेम हो जाएगी. जैसे आप राइट से लिखते थे वैसे ही लेफ्ट से लिखेंगे. आप अपने पाँव से भी लिखना शुरू करेंगे तो भी आपकी हैंड राइटिंग बिल्कुल सेम हो जाएगी.
कुछ भी चेंज नहीं आएगा उसमें। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट योर हैंड और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड विच इज राइटिंग, इट इज योर ब्रेन, इट इज योर सबकॉन्शियस माइंड विच इज राइटिंग। सो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चीज है, वो सारा इंप्रेशन आपकी हैंडराइटिंग बिल्कुल क्लियरली बता देती है, 100% एक्यूरेटली, बिना झूठ बोले। तो एक बार को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें मैनिपुलेट कर सकते हैं। किसी की पढ़ने में गलती हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बाकी और साइंसेस में। ग्राफोलॉजी में कोई गलती नहीं होती। इसमें जो आप बोल रहे हैं वो आप हैं कि नहीं है, वो एग्जैक्टली पता लग जाती है। ग्राफोलॉजी जो टर्म है, इसको फ्रेंच में इट वाज डिस्कवर्ड इन कॉइन्ड इन फ्रेंच, ग्राफोलॉजी बाय एबिजीन हिप्पोलिटिक मिशॉन 1882 में बनी थी। वेरी ओल्ड साइंस, दिस इज आल्सो वेरी ओल्ड साइंस, नई नहीं है। इंडिया में भी 1654 में समर्थ रामदास की एक बुक थी देशबोध करके, उसमें एक चैप्टर है लेखन क्रिया निरूपण के ऊपर, उसमें ग्राफोलॉजी का जिक्र है। कमीलो बाल्डी ने पहली बुक, इस पे ऑफिशियल एक बुक आई थी, फॉर्मल बुक जो आई थी, वो भी 1622 1600, तो यू कैन से इट इज अर्ली 17th सेंचुरी की से इसके पीपल हैव फाउंड अ कनेक्शन बिटवीन योर सबकॉन्शियस माइंड और योर माइंड एंड द प्रिंट्स विच यू मेक विद योर हैंड्स। तो ये प्रॉपर एक बहुत पहले से, आज से 3 सेंचुरीज पहले से है। ज्यादा लोग इसको यूज नहीं करते, पढ़ते नहीं है, बहुत ज्यादा लोग इसको डेली लाइफ में लाते नहीं है। मेरी समझ से एवरी टीचर, बीएड का जो हमारा डिग्री होती है, उसके अंदर कंपलसरी कर देना चाहिए इसको, ग्राफोलॉजी एज अ सब्जेक्ट को, बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आजकल की डेट में कौन लिखता है, सिर्फ बच्चे ही लिखते हैं, फोर्सफुली लिखते हैं, वो भी उनको भी बस चले तो टाइप करने लगे, और थोड़े आने वाले टाइम में शायद हो सकता है स्कूल्स में भी लैपटॉप और टैबलेट्स ही चल जाए और उसमें टाइप करके ही काम करें। बट अगर आप लिखेंगे, जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपका जो सबकॉन्शियस जो थॉट्स हैं वो पेपर पे नहीं आएंगे। एंड लिखना बच्चे लिखते हैं, आप बच्चे जो लिख रहे हैं उनका आप यू कैन, द पेरेंटिंग में ग्राफोलॉजी वर्क्स वंडर्स। डेफिनेशन अगर हम समझें इसकी, तो स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी, स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी मतलब आपका बिहेवियर साइकोलॉजिकल हो चाहे फिजियोलॉजिकल हो, दोनों ही चीजें, बाय अंडरस्टैंडिंग द ग्राफ्स, ग्राफ्स मैंने बताया आपको, जो भी डॉट आप डालेंगे पेपर पे ऑन एनी सरफेस इन द फॉर्म ऑफ हैंडराइटिंग, सिग्नेचर, डूडल, ग्राफिटी एक्सेट्रा, किसी में भी, उसकी स्टडी जो है आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ग्राफोलॉजी से, आपके हैंडराइटिंग से आपकी पर्सनैलिटी क्या निकल के आती है, वो चीज की स्टडी जो है वो ग्राफोलॉजी है। इसमें भी बहुत रिसर्च हुई, बहुत सारी चीजें हुई। इनफैक्ट एक इसी का एक ब्रांच है ग्राफोथेरेपी, वो बहुत जगह मैंने देखा ग्राफोथेरेपी लोग बहुत ही कैजुअल वे में यूज कर लेते हैं कि लेटर को सही फॉर्म में लिखना इज ग्राफोथेरेपी, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मतलब कि वो सही फॉर्म में लिखना, सही फॉर्म का मतलब सिचुएशनल है। सही फॉर्म आपके लिए हो सकता है, सही फॉर्म कुछ और हो, मेरे लिए हो सकता है वो सही फॉर्म इज डिफरेंट। सो आपके लिए वो चीज काम करेगी, मेरे लिए नहीं काम करेगी। सो इट इज नॉट अबाउट जस्ट राइटिंग द करेक्ट लेटर इन द करेक्ट फॉर्म, बिकॉज करेक्ट फॉर्म क्या है यही हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले। और इट इज ऑल सिचुएशन, करेक्ट इज सिचुएशन। अगर उस सिचुएशन की डिमांड क्या है, आपको क्या चीज चाहिए लाइफ में, या क्या ऑब्जेक्टिव है आपका जो आप देख रहे हैं, किस ऑब्जेक्टिव से आप हैंडराइटिंग को एनालाइज कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्या क्या कर सकते हैं, इसका क्या स्कोप है, हम इसमें ग्राफोलॉजी में क्या चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम अपने आप से जितना झूठ बोल रहे हैं, हम एक बार को मेकअप लगा लें और हम शीशे के सामने खड़े हो जाएं और वो भी झूठ बोलेगा कि आप उतने ही अच्छे हैं। मैं अभी विग पहन लूं और विग पहन के खड़ा हो जाऊं, मैं कहूं मेरे सर पे बाल आ गए, तो शीशा तो बोलेगा हाँ सर पे बाल आ गए, बट वैसे हकीकत में तो नहीं है। सो जो हकीकत में है वो चीज आपकी हैंडराइटिंग बताएगी। सो अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, यू हैव इफ यू वांट टू रियली नो व्हाट यू आर, आप क्यों ऐसा करते हैं जब भी कुछ करते हैं, और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डूइंग दैट, आप वो समझ सकते हैं ग्राफोलॉजी से। हैंडराइटिंग पढ़नी आ जाएगी आपको, आपको समझ में आ जाएगा आपके एक्चुअल थॉट्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस पैटर्न ऑफ थिंकिंग क्या है। और वो एक दिन में डेवलप नहीं हुआ है, किसी का भी नहीं हुआ है। हमारे को जिस तरीके से आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, जितने साल आपने एक तरीके से सोचा है, क्योंकि वो सोच बिल्डअप होने में टाइम लगा है, तो वही सोच बिल्डअप होने में टाइम लगा, एंड वही सोच का रिप्रेजेंटेशन है आज की डेट में आपकी हैंडराइटिंग। आप बचपन की अपनी हैंडराइटिंग उठा के देखें और आज अपनी हैंडराइटिंग उठा के देखें, आपको बाहर से तो एकदम ऑलमोस्ट सिमिलर सी दिखेगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे, लेटर फॉर्मेशन जो है उसके वो बदल गए होंगे। कुछ कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट में काफी,
कि क्या क्या चीजें होती हैं हैंडराइटिंग के अंदर, इतनी हैंडराइटिंग के अंदर चीजें होती है हमें पता भी नहीं है। और इतने ध्यान से, मतलब कितने एलिमेंट्स है हैंडराइटिंग के अंदर स्टडी करने के लिए, ये भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, एंड इट इज वंडरफुल। एंड जब आपको समझ में आएगा, आप देखेंगे और सिर्फ हैंडराइटिंग देख के आप बता देंगे लोगों के बारे में कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है, एक्चुअल क्या चीज है, अंदर से क्या है, वो बहुत सही। इसीलिए जब मैं बोलता हूँ मैं मैच मेकिंग के लिए कुंडली मिलाने से ज्यादा, कुंडली मिलाई गुण तो खैर मैं वैसे भी नहीं मिलाता, बट कुंडलियों के साथ साथ हैंडराइटिंग भी एक एक ऐसे भी उनसे लिखवाता हूँ। एंड इट साउंड्स वेरी स्ट्रेंज कि क्यों अभी हम क्यों ऐसे लिखे। तो आजकल मैं कोरोना वायरस में सबसे ऐसे लिखा रहा हूँ कि कोई लॉकडाउन का एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अगर आपने किसी भी पर्पस के लिए लिखाना है, मतलब अब एंड जो जितने मैं कॉर्पोरेट्स में कंसल्टिंग करता हूँ उसमें भी मैं जितने जिसका ज्वाइनिंग आ रही है उससे मैं बोलता हूँ दो चार चीजें बोलते हैं कि आप 5 साल में कंपनी को कहाँ देखना चाहते हैं उसके बारे में एक पेज लिखिए, या फिर आप अपना जो इंट्रोडक्शन है उसको आप लिख के दीजिए। तो जब भी आदमी लिख के देता है, जब भी आदमी लिख के देता है, हैंड रिटन देता है, वो सबकॉन्शियसली सोचता है, वो उसका हैंडराइटिंग कितनी सुंदर आ रही है उस पर ध्यान नहीं देता, वो आप ध्यान दे भी नहीं सकते। और लेकिन क्योंकि आपका ध्यान होता है कंटेंट पे, आप कंटेंट क्या लिख रहे हैं। और मजे की बात है, हमें मतलब ही नहीं कंटेंट से, हमें कंटेंट से कुछ मतलब नहीं, उसने क्या लिखा उससे कुछ लेना देना नहीं है। उसने कोई गाना ही लिख दिया अपने मन से लिख के उसके अंदर पैराग्राफ फॉर्म में, हमें वो भी चलेगा। तो हमें कंटेंट से मतलब नहीं है, हमें कैसे लिखा है, द वे इट इज रिटन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो हम वो चीज देखेंगे। कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, चाइल्ड डेवलपमेंट, मैंने बोला आपके बच्चों के लिए दिस वर्क्स वंडर्स। बच्चों की हैंडराइटिंग देख के आप ये समझ सकते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है इस टाइम। ये जो पीछे कुछ टाइम पहले सुशांत सिंह राजपूत का जो केस हुआ, वो केस बहुत बड़ा, उस टाइम पे सभी लोग अचानक से डिप्रेशन और सभी मतलब मेंटल प्रेशर और इन सब चीजों की बात करने लगे, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स की बात करने लगे। अगर ग्राफोलॉजी अगर आपको आती है, आपको हैंडराइटिंग पढ़नी आती है, आप बहुत पहले से समझ सकते हैं कि वो किसके दिमाग में वो उसकी थिंकिंग किस तरफ जा रही है, विच डायरेक्शन द थिंकिंग इज गोइंग। एंड इफ डायरेक्शन इज रॉन्ग, if direction is negative, if direction is passive, then it can be corrected, it can easily be corrected। कुछ words ठीक कर दें, कुछ लोगों को उनको फॉर्मेशंस ठीक करा दें लेटर्स की, वो चीजें ठीक हो जाएंगी। तो वो एक बहुत ही सही तरीका है। सबको हम बोलते हैं सब अपने माइंड को ट्रेन करना है हमने, यू हैव टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस थिंकिंग। ट्रेनिंग वगैरह सारी हो जाएगी अगर आप ठीक से सही फॉर्मेशन से सही लिखना शुरू कर दें। टीचर्स के लिए मैंने पहले ही बताया आपके लिए बहुत जरूरी है। कोई टीचर, अगर जो भी टीचर जिसकी भी डीलिंग बच्चों के साथ होती है, अगर वो ग्राफोलॉजी सीख ले, इट विल वर्क वंडर फॉर दैट पर्सन, क्योंकि वो बहुत बहुत अच्छा कर सकता है, मतलब वो बच्चों के लिए रियली बेनिफिट, काफी बेनिफिट दे सकता है। काउंसलर्स, कोई भी काउंसलर, किसी भी काउंसलिंग आप उसमें हैं, किसी तरीके की काउंसलिंग में है, आप उसको यूज कर सकते हैं। पेरेंट्स, मैंने बताया जैसे पेरेंटिंग में दिस वर्क्स वंडर। कोई भी नेगेटिव ट्रेट है, कोई इश्यूज है, उनको करेक्ट कर सकते हैं। शादी के लिए मैं जैसे मैं यूज कर रहा हूँ वैसे आप कोई भी है वो यूज कर सकता है। अंडरस्टैंडिंग द पर्सन, मतलब ऐसा होता है कि बॉयफ्रेंड मटेरियल और हस्बैंड मटेरियल में बड़ा फर्क है। तो क्या फर्क है हस्बैंड मटेरियल और बॉयफ्रेंड मटेरियल में, या गर्लफ्रेंड मटेरियल और वाइफ मटेरियल में। तो ये फर्क आप जो है हैंड राइटिंग देख के आप समझ सकते हैं। Recruitment, a lot of companies are using it nowadays, तो most of the companies are using this somehow। तो जितने भी HR एम्प्लॉइज हैं, जितने भी एम्प्लॉइज से कनेक्शन रखते हैं, एम्प्लॉय से डील करते हैं डायरेक्टली लोग, वो लोग यूज कर सकते हैं। क्रिमिनोलॉजी, आपने बहुत सारे जो क्राइम सीरियल्स हैं उनमें फॉरेंसिक डिपार्टमेंट सुना होगा कि एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होता है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जनरली चेक करता है कि सारी चीजें चेक करता है, उसमें हैंड राइटिंग भी चेक करता है। कई बार आपने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा कि सुसाइड नोट, सुसाइड हुआ और सुसाइड नोट लिखा हुआ। अब सुसाइड नोट का बड़ा ही पिकुलर, ग्राफोलॉजिस्ट जो हैं, जितने भी ग्राफोलॉजिस्ट जो क्रिमिनोलॉजी में डील करते हैं, उनका बड़ा ही करीब सीधा एक वो रूल है। सुसाइड नोट को लेकर तो बिल्कुल रूल है कि अगर सुसाइड नोट में उसकी राइटिंग नीचे की तरफ नहीं जा रही है तो इसका मतलब सुसाइड नोट फर्जी है। तो ये फ्रॉड सुसाइड नोट है, ये दे कैन इजिली टेल। सो इन्वेस्टिगेशन में, क्रिमिनोलॉजी में जितने भी फॉरेंसिक वाले ये सब यूज कर सकते हैं, उसमें यूज होती है ग्राफोलॉजी। हाई लेवल, थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाते हैं वो लोग, उनके पास सॉफ्टवेयर, अब तो सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं इसके, कि अगर ये चेक करने के लिए कि सिग्नेचर एकदम एग्जैक्ट दिखने वाले सिग्नेचर में भी फ्रॉड कौन सा सिग्नेचर है, उस चीज को चेक करने के लिए भी सॉफ्टवेयर हैं, अलग अलग मशीन वो हैं, तरीके हैं जिसे आप चेक कर सकते हैं। दोनों स्कैन करके दोनों को आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा फ्रॉड है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। हम लाइफ पार्टनर चूज करने में इतनी कुंडली वगैरह दिखाते हैं, बिजनेस पार्टनर चूज करने में हमें
पता ही नहीं चलता कौन सा बिजनेस पार्टनर कैसा है। अगर हमें उसके सिग्नेचर समझ में सिग्नेचर पढ़ने आते हो और अगर हमें उसकी हैंडराइटिंग पढ़नी आती है, तो आप ये इजीली बता सकते हैं कि ये हमें धोखा देगा कि नहीं देगा, ये विल दिस पर्सन बैकस्टैब और नॉट। और इन शॉर्ट, अगर आप ह्यूमन बिहेवियर को समझना चाहते हैं without discussing with anyone or without interfering with anything, you can easily understand the person who is there on the other side. उसके दिमाग में, उसके मन में, उसके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, वो किस तरीके का आदमी है, वो पूरा आप समझ सकते हैं। तो जितने भी सीरियल जो हमारे किलर्स हैं या जितने भी सीरियल जो आप देखते हैं टीवी पे, जो क्रिमिनल्स हैं, उनके लिए तो बहुत, मतलब जो फोरेंसिक वाले जो पहले वो बड़ी बड़ी मर्डर मिस्ट्री सॉल्व होती है हैंडराइटिंग देख के, कि किसमें सही लिखा है, किसमें किसने झूठ बोला है, किसने सही बोला है। चीटिंग कर रहा है कोई आदमी, वो आप पता कर सकते हैं कौन चीटिंग करेगा। डिसऑनेस्ट है वो आप पता कर सकते हैं, ऑनेस्ट है वो भी आप पता कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके का ह्यूमन ट्रेट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है किसी का, वो भी आप चेक कर सकते हैं हैंडराइटिंग देख के। वो कहाँ चीटिंग करेगा, किस चीज में चीटिंग करेगा, पैसे में चीटिंग करेगा, फिजिकल एस्पेक्ट में चीटिंग करेगा, वो किस तरीके से चीटिंग करेगा, ये भी आपको पता लग जाएगा सिर्फ हैंडराइटिंग देख के। तो ये वो इसके मतलब देयर इज इमेंस स्कोप। अभी हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, आपको मैं ब्रीफ में समझाता हूँ कि हैंडराइटिंग में एक्चुअली होता क्या क्या है। तो हैंडराइटिंग हम दो तरीके से एनालाइज करते हैं, दो अप्रोचेस कह लीजिए इसको आप। एक होता है जेस्टॉल्ट अप्रोच। जेस्टॉल्ट अप्रोच इज लाइक किसी भी पिक्चर, किसी भी चीज को ओवरऑल देखना। ओवरऑल पिक्चर देखना मतलब, ओवरऑल पिक्चर देखना मतलब मैंने वो पूरी पिक्चर देखी एक साथ। मैंने एक एक मतलब फॉरेस्ट देखा, ट्रीज नहीं देखे। तो मैंने एक फॉरेस्ट देखा बस, तो इंडिविजुअल ट्रीज नहीं देखे। यहाँ पे इंडिविजुअल ट्रीज जो है वो हमारे हैं लेटर्स, अल्फाबेट्स जो हम करेंगे उनको भी देखेंगे, उनको हम कहते हैं ट्रेट मेथड। और ये है जेस्टॉल्ट मेथड। सो जेस्टॉल्ट मेथड में क्या क्या चीजें आती हैं? एक चीज आती है मार्जिन। मार्जिन आप लोगों को अगर याद हो, बचपन में हमने, हमारी जो कॉपीज होती थी या आपके बच्चों की जो कॉपीज है टिल द स्टैंडर्ड थर्ड और फोर्थ और शायद फिफ्थ तक, उसमें एक मार्जिन ऑटोमेटिक ड्रॉ होता है, लेफ्ट हैंड साइड का और टॉप साइड का मार्जिन ऑटोमेटिकली बना हुआ होता है, हमें वही फॉलो करना होता है। लेकिन जैसे ही हम रजिस्टर पे जाते हैं या बिना मार्जिन वाली रूल शीट्स पे जाते हैं, हम मार्जिन भूल जाते हैं, हम अपने स्टाइल से लिखना शुरू कर देते हैं। कर्सिव हैंडराइटिंग हम सभी को सिखाई गई बचपन में और सबने सीखी, लेकिन अभी भी हैंडराइटिंग, जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान में, अगर 130 करोड़ लोग हैं तो हर एक की हैंडराइटिंग डिफरेंट है। सब किसी की, कोई दो लोगों की हैंडराइटिंग बिल्कुल एक जैसी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि दोनों के थॉट पैटर्न्स, सबकॉन्शियस पैटर्न, वो सोचने का तरीका एक जैसा नहीं हो सकता। सो जेस्टॉल्ट मेथड का मतलब हो गया ओवरऑल पिक्चर देखना। उसमें एक पार्ट आता है मार्जिन। मार्जिन ये सैंपल के लिए मैंने आपको शीट दिया हुआ, जैसे ये मार्जिन में मतलब कितनी जगह छोड़ी है, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में। अब मैं आपसे कहूँ कि ये जो ब्लैंक शीट है, ये जो ब्लैंक पेज है, ये आपकी जिंदगी है, ये आपकी लाइफ है, या ये आपका दिन है, कुछ भी किसी भी तरीके से आप दे सकते हैं। तो एक ब्लैंक पेज में लेफ्ट मार्जिन जो है ये पास्ट है, टॉप मार्जिन ये भी पास्ट है, बॉटम मार्जिन ये फ्यूचर है, और राइट मार्जिन ये भी फ्यूचर है। तो आप कितने फ्यूचर ओरिएंटेड हैं, या आप कितने पास्ट से चिपके बैठे हैं, या कितना टाइम आप इसको दे रहे हैं, कैसे आप यूज कर रहे हैं दिन का टाइम, ये मार्जिन बता देगा। और मार्जिन कोई एक तरीके का नहीं है। अगर हमें सिर्फ टॉप मार्जिन स्टडी करना है, टॉप मार्जिन में 4 तरीके के टॉप मार्जिन है। लेफ्ट मार्जिन स्टडी करना है, 8 तरीके के लेफ्ट मार्जिन है। ऐसे ही राइट मार्जिन है, ऐसे ही बॉटम मार्जिन है। तो ऐसे अलग अलग, हर चीज, हर मार्जिन का इम्पैक्ट, हर चीज का इम्पैक्ट अलग अलग है। अब जैसे ये वाला मार्जिन, मार्जिन ई का अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो फोटो लगी हुई है, फोटो में ई है, फोटो में ई में बता रहा है कि ये मार्जिन से जुड़ा हुआ लिख रहा है, फिर जाते जाते आगे आगे ये ड्रिफ्ट हो गया। इट इज ड्रिफ्टिंग राइट मार्जिन, ड्रिफ्टिंग लेफ्ट मार्जिन। इसका मतलब ये होगा कि ये आदमी अपने पास से जुड़ा हुआ था पहले स्टार्ट में, लेकिन आजकल अपने पास से, अपने पास्ट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे सोसाइटी, कल्चर, पेरेंट्स, मदर, फादर, उनसे दूर होता हुआ जा रहा है। अभी आजकल कुछ बन नहीं रही, आजकल दूर जा रहा है। अब हो सकता है ये हॉस्टल में चला गया हो सकता है ये बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा हो, या ये अपने घर वालों से दूर रह रहा और घर वालों से कनेक्शन इसका अब कम हो गया। अब बताइए, इतनी इतनी बात आपको सिर्फ और सिर्फ एक मार्जिन देख के पता लग सकती है। ऐसे ही अलग अलग मार्जिन है। यहाँ पर जैसे ये पूरा अंदर ये उल्टा जा रहा है एफ में, इट इज नैरोइंग लेफ्ट मार्जिन। ऐसे अलग अलग सबके मतलब आएंगे। आई में कोई मार्जिन नहीं। तो ये हर एक चीज का मतलब एक अलग होगा, और ये मार्जिन आपको बता देंगे कि किस तरीके का उसका
पास्ट से क्या कनेक्शन है, फ्यूचर से क्या कनेक्शन है, फ्यूचर का मतलब हो गया एम्प्लॉइज, बच्चे, रिलेशनशिप विद देम, सब चीजें समझ में आएंगी उसमें, सिर्फ और सिर्फ मार्जिन पढ़ के। तो मार्जिन तो एक छोटी सी चीज हुई। फिर उसके बाद आता है बेस लाइन्स। बेस लाइन्स मतलब इमेजिनरी लाइन समझ लीजिए, ब्लैंक पेज पे आप लिख रहे हैं अगर, सो एनी इमेजिनरी लाइन विच यू ड्रॉ बिलो दिस, दैट इज व्हाट बेस लाइन इज। मैं इसी बेस लाइन की बात कर रहा था जब मैंने बोला था आपको, जो नीचे की तरफ ड्रूपिंग, नीचे की तरफ जा रही है, वो बेस लाइन जो है वो सुसाइडल नोट्स में पाई जाती है। वो डिप्रेसिव टेंडेंसीज बताती है। एसेंशियल बेस लाइन कुछ और बताती है, स्ट्रेट बेस लाइन कुछ और बताएगी। तो ये सारी बेस लाइन्स के मतलब अलग अलग होंगे कि लाइन कैसे जा रही है, कैसे बन रही है। टेढ़ी मेढ़ी बेस लाइन है तो भी वो बताएगी किस तरीके से आपकी क्या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो और कैसे आप किस किस चीजों आपका किस तरीके से बैलेंस आपकी लाइफ में बना हुआ है, एक तरीके से वो बताएंगे। फिर आपके ये स्लांट्स है, टेढ़ा लिखते हैं आप, सीधा लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का लिखते हैं। सो जैसे नीचे स्लांट से छोटा सा ये बना हुआ है A to F, 6-7 तरीके की स्लांट्स है, कितना नीचे झुकी हुई हैंड राइटिंग है, कितनी सीधी हैंड राइटिंग है, कितने पीछे हैंड राइटिंग है। ये भी बड़ा इजी है समझना। समझ लीजिए जैसे आप खुद हैं, आप कितना आगे झुक के किसी से हाथ मिला रहे हैं, कितना पीछे, कोई हाथ मिलाने आपको कर रहा है तो कितना पीछे हट रहे हैं। इन शॉर्ट, कितने इंट्रोवर्ट आप हैं, कितने एक्सट्रोवर्ट आप हैं। तो ये आपका स्लांट एक बता देता है। इसमें भी अलग अलग तरीके की बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज है कि समझने के लिए, एग्जैक्ट चीज निकालने के लिए। फिर आता है प्रेशर। अब आपने कई बार देखा होगा, आप जब आप लिखते हैं तो लिखने का जो इम्प्रेशन है वो पिछले वाली शीट पे भी चला जाता है, या उसके पीछे भी दिखाई देता है। आप फील कर सकते हैं कि इसमें प्रेशर है। तो जो प्रेशर है, दैट प्रेशर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन रीडिंग हैंडराइटिंग। वो बताता है इन्वॉल्वमेंट, अटैचमेंट और इमोशंस आपके, कितने एनर्जी है आपके अंदर अभी किस चीज की। तो ये बहुत सारी चीजें बताएगा। और ये कंटेक्चुअल भी है, किस चीज के लिए आप लिख रहे हैं उस पर भी बताएगा। किस कहीं अगर आप साइन कर रहे हैं तो उसमें ये सारी चीजें साइन सिग्नेचर एनालिसिस में कई बार यूज होती है, तो वो भी पता लगेगा। फिर आता है जोन्स। जोन मतलब अपर जोन, मिडिल जोन एंड लोअर जोन। 3 हिस्सों में बांटी हुई हैंडराइटिंग है। कुछ जो अपर जोन की हैंडराइटिंग है तो वो इंटेलेक्ट दिखाती है, आपका हेड दिखाती है, मतलब आप दिमाग से ज्यादा सोचते हैं। मिडिल जोन इज योर प्रेजेंट एंड नाउ, हार्ट, दिल वाली बात। और लोअर जोन इज योर एक्शन, प्रैक्टिकल एक्टिविटी। सो ये किस जोन में है, किस जोन की हेवी हैंडराइटिंग है, वो उसका बेसिक माइंडसेट बताएगी आदमी अभी कहाँ जी रहा है। इंटेलेक्चुअल ज्यादा है या ये स्ट्रेट उसमें हेयर एंड नाउ में जी रहा है। मिडिल जोन इज योर हेयर एंड नाउ, प्रेजेंट एक्टिविटी। इसको जो भी चाहिए अभी चाहिए, तो उस जोन में जी रहा है। तो वो जोन्स बताती है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड पेस्टोसिटी। पेस्टोसिटी इज योर हाउ यू ग्रेटिफाई योरसेल्फ। आप अपने सेंसेस को कैसे ग्रेटिफाई करते हैं। इससे हम ये भी बता सकते हैं, अगर आपको बहुत क्लियरली पेस्टोसिटी दिख रही है कि आप लाउड म्यूजिक सुनते हैं, आपको मिर्ची ज्यादा पसंद है, चाइनीज मतलब शेजवान राइस खाएंगे, कि आप नॉर्मल राइस खा लेंगे, हक्का जो फ्राइड राइस नॉर्मल वाले, मतलब मिर्च कितनी खाएंगे खाने में, लाउड म्यूजिक कितना सुनेंगे। ये आपकी पेस्टोसिटी बताती है कि मतलब बिकॉज इट इज सेंस ऑफ ग्रेटिफाइंग योरसेल्फ। हाउ डू यू ग्रेटिफाई योरसेल्फ, ग्रेटिफाई योर सेंसेस बेसिकली। ये पेस्टोसिटी के बाद देन देयर इज समथिंग कॉल्ड कनेक्शन। पेस्टोसिटी होती क्या, वैसे मैं इसको बताया तो जितनी इंक आपने, जैसे आप कर्व लेते हैं, आप कभी अपने ध्यान से देखा होगा नहीं, बट आप जब भी कर्व बनाते हैं, जैसे जी का कर्व बना या ए का कर्व बना, तो कर्व वाली साइड पे इंक थोड़ी सी ज्यादा गिर जाती है पेन से। सो वो एक स्मूथ, वो एक पूरे पेज पे पूरी हैंडराइटिंग में यूनिफॉर्म रहती है। और ऐसा नहीं वो पेन की फॉल्ट है। और ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए, पेन या पेपर की कभी भी फॉल्ट नहीं आएगी हैंडराइटिंग में, क्योंकि सेम पेन सेम पेपर से आप किसी और से लिखवाएंगे वो अलग लिखाएगा। सो इट इज नेवर द पेन एंड द पेपर इज द फॉल्ट, इट इज ऑलवेज योर सबकॉन्शियस माइंड। सो पेस्टोसिटी इज समथिंग, जो इंक का जो गिरना है, दैट इज व्हाट पेस्टोसिटी इज। उसका एक मेजर है, कैसे हम उसको स्टडी करते हैं। देन देयर इज कनेक्शंस। कनेक्शंस मतलब कैसे वर्ड्स कनेक्टेड हैं आपकी हैंडराइटिंग में। कई तरीके के कनेक्शन है, 4-5 तरीके के कनेक्शन होते हैं। एक होता है गार्लेंड, जो मेजोरिटी यूज करते हैं, जैसे हम नीचे से गार्लेंड बनाते हैं। देन देयर इज आर्केड फॉर्मेशन। आर्केड फॉर्मेशन हम ऊपर से ऐसे बनाते हैं, उसके आर्केड्स बनाते हैं। देन देयर इज थ्रेडिंग। थ्रेडिंग आपने देखा होगा कि जैसे डॉक्टर्स लिखते हैं दवाइयाँ, थ्रेडिंग उसको हम बोलते हैं, जो समझ में नहीं आती क्या लिखा है। फिर होता है प्रिंट स्क्रिप्ट, मतलब जो सब डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग जिसको हम बोलते हैं। फिर होता है एंगल्स, अगर हैंडराइटिंग में एंगल्स हैं वहाँ उसको एंगल्स हैंडराइटिंग। हर एक के मतलब अलग अलग है, गार्लेंड ही 10-12 तरीके के।
ऐसी बाकी सारी चीजें अलग अलग हैं, तो उनको पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग अपने उस कोर्स में। इन सब के मतलब अलग है, कनेक्शंस का मतलब बिल्कुल अलग। साइज, स्मॉल हैंड राइटिंग, मीडियम हैंड राइटिंग, लार्ज हैंड राइटिंग, एक्स्ट्रा लार्ज हैंड राइटिंग, कितने बड़े बड़े वर्ड्स आप लिख रहे हैं, दैट इज व्हाट साइज इज। तो साइज also tells one feature about you, a very unique feature about you, कि क्या कैसे आप हैं, मतलब कितना आप दिखाना पसंद करते हैं, कितने आप, मतलब आपको साइज का मतलब बेसिकली समझिए, आपको फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है कि आपको ट्रीज दिखाई दे रहे हैं, मतलब आपको इंडिविजुअल एक छोटी छोटी डिटेल्स दिखाई दे रही है कि आपको बड़ी पिक्चर देखते हैं आप, तो वो साइज बता दी। साइज बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपको किसी मैनेजरियल रोल के लिए सीईओ हायर करना है किसी कंपनी का, तो वो साइज बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें आपको मतलब जिस काम में अटेंशन टू डिटेल चाहिए और अटेंशन टू डिटेल मिल रही है आपको, तो अटेंशन वो ठीक है। अगर नहीं चाहिए अटेंशन टू डिटेल, ओवरऑल पिक्चर ही देखनी चाहिए उस इंसान को, और वो अटेंशन टू डिटेल में घुसा हुआ है, दैट मीन्स दैट ही इज वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम। तो ये आप साइज देख के पता कर सकते हैं। फिर आता है स्पेस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्पेस कितना छोड़ा हुआ है, एक ही वर्ड के अंदर जो लेटर्स लिखे हुए हैं उनके बीच में कितना स्पेस है, दो वर्ड्स के बीच में कितना स्पेस है, और दो लाइंस के बीच में कितना स्पेस है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो है फंक्शन है कि कितना आदमी कितना स्पेस किसको दे रहा है, क्या स्पेस है उसकी लाइफ में, स्पेस का क्या मतलब है, ये भी हम उसका नेचर पढ़ सकते हैं। तो जेस्टॉल्ट मेथड बेसिकली क्या है, हम किसी भी स्क्रिप्ट में पढ़ सकते हैं। ओनली थिंग इज स्क्रिप्ट हैज टू बी रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आप कोई भी स्क्रिप्ट कर रहे हो, चाहे हिंदी लिखा हो, चाहे संस्कृत लिखा हो, चाहे कन्नड़ी का कोई भी साउथ की लैंग्वेज, कन्नड़ी का हो, मलयालम हो, मराठी हो, कुछ भी लिखा हो आपने, किसी भी गुरुमुखी में लिखा हो, तो आप सारी की सारी चीजें पढ़ सकते हैं। और वो लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। उर्दू नहीं पढ़ सकते हम, क्योंकि उर्दू इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो लेफ्ट टू राइट की जितनी हैंड राइटिंग है हम सारी इसमें जेस्टॉल्ट मेथड से पढ़ सकते हैं, सबका मतलब एक ही आएगा। और लगभग अगर हम सबके वर्जन निकालें और छोटी छोटी और बाकी फर्दर इसको डायसेक्ट करें, तो लगभग मोर देन 100 पैरामीटर्स हैं जेस्टॉल्ट मेथड के ही एक हैंड राइटिंग को पढ़ने के, और उसको पढ़कर हम आगे बता सकते हैं कि उसका पूरा नेचर का, पर्सनालिटी का पूरा पूरा एक ओवरव्यू एक पूरी पिक्चर हम दे सकते हैं सिर्फ जेस्टॉल्ट मेथड से ही। और बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह जेस्टॉल्ट मेथड ही पर पढ़ाते हैं, डिटेल में नहीं जाते ज़्यादा। और बहुत सारे आपको कोर्सेज मिलेंगे जो कोर्सेज पढ़ा भी रहे हैं वो जेस्टॉल्ट ही पढ़ाएंगे, मतलब ये बेसिक चीजें पढ़ाएंगे और डिटेल में नहीं जाएंगे। और इतने डिटेल में नहीं हो जाएंगे, जैसे गार्लैंड में मैंने बताया आपको 12 तरीके की गार्लैंड है, फिर वो सारे गार्लैंड 3 पढ़ाए 4 पढ़ाए इस तरीके का पढ़ा के आपको कर सकते हैं। बट वी इन दिस कोर्स दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जो जितना डिटेल्ड हो सकता है उतना डिटेल्ड कोर्स है। एंड विद एवरी कोर्स व्हिच वी डू देयर इज समथिंग व्हिच इज एडेड टू दिस कोर्स, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ऐड होता ही रहता है हर एक में। अब दूसरा तरीका है ट्रेट मेथड, जिसको हम बोलते हैं व्हिच इज फाइंडिंग, मतलब जो ट्रेट्स जो कि सारे इंडिविजुअल लेटर्स को के बारे में बताते हैं। तो अब आपको 26 लेटर है हमारे, वो 26 के 26 हमारे डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ के बारे में बताएंगे। आपको बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ, जैसे लेटर मिडिल जोन लेटर जो है ए और ओ, ये ए ओ आई ई एम एन आर एस यू वी डब्ल्यू एक्स, ये सारे के सारे मिडिल जोन लेटर्स हैं। इनको हम मिडिल जोन कहते हैं क्योंकि ये मिडिल जोन में ही आते हैं, इसमें कोई ऊपर एक्सटेंशन नहीं है, कोई नीचे एक्सटेंशन नहीं है, इसलिए ये मिडिल जोन लेटर्स है। अब मिडिल जोन लेटर्स में अब छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कैसे लेटर, जैसे लेटर ए और ओ का जो खाली स्पेस है ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है। और कितना कंटेमिनेटेड सबकॉन्शियस माइंड है, कितना नेगेटिव आप सोच रहे हैं, किस के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, ये सब आपका ए और ओ की फॉर्मेशन जो बनती है पेपर पे उससे पता लग जाए। सो ए एंड ओ आपको सब बहुत ज्यादा यूज होने वाले वॉवल सबसे ज्यादा यूज होते हैं किसी भी हैंड राइटिंग में, तो उनको अगर हम पढ़ लेते हैं। अब जैसे आई है, ये आई नहीं है, इसमें जो स्मॉल आई है उसमें हम स्मॉल आई नहीं पढ़ते हैं कभी भी, हम उसका डॉट देखते हैं बस। क्यों डॉट देखते हैं? क्योंकि डॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ सिर्फ डॉट ही 25 तरीके के डॉट्स हैं। कई जगह डॉट डॉट की जगह स्लैश है, वो स्लैश आगे की तरफ है, पीछे की तरफ है, ऊपर की तरफ है, किस तरफ स्लैश है वो भी समझना पड़ेगा। और डॉट कहाँ है, कहाँ डॉट जा रहा है। आप कोई भी हैंड राइटिंग आप सैंपल आप उठा के देखिएगा, उसमें आप आई का डॉट देखिएगा, आई का डॉट ठीक आई के ऊपर नहीं होगा। बहुत कम केसेस होते हैं जिनमें आई का डॉट आई के ऊपर ही एग्जैक्ट आता है हमेशा। अक्सर या तो पीछे की तरफ जाएगा या आगे की तरफ जाएगा। तो उस हर एक चीज का मतलब अलग है।
कई बार होगा ही नहीं, 10 बार आई लिखा हुआ है अगर एक सैंपल में और उसमें आई का डॉट है ही नहीं, तो वो भी बहुत सारी चीजें बताता है कि क्या वो बेसिक सोच क्या है। ऐसे ई, अब ई का, ई के लिए ई इज इक्वल टू ईयर्स, कान है आपके ई, आप कैसा ई बना रहे हो वो बताएगा कि आप कितना सुनते हैं किसी की। सबसे पहले आप अपने बच्चों की हैंड कॉपीज में या किसी भी कॉपीज में ई की फॉर्मेशन देखिए, ई खुला हुआ है, बंद नहीं है, इनक्लोज नहीं है, चिपका हुआ नहीं है ई का जो ऊपर का पोर्शन है, तो देन अगर वो चिपका हुआ नहीं है दैट इज गुड, बच्चा सुनता है आपकी। अगर वो चिपका हुआ है तो वो आपकी नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा मतलब वो किसी की नहीं सुनेगा, फिर अपनी ही चलाएगा। तो ये ई का छोटा सा एक एग्जांपल है, कई तरीके की ई बनते हैं, हम लोग उस ई के अंदर के फर्दर वेरिएशंस हैं स्ट्रोक्स के और बाकी चीजों के, वो भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें। अब ये मान के चलिए एक एक लेटर के कम से कम 30 वेरिएशंस हैं, जो कि जनरली और भी ज्यादा पाए जाते हैं, बट मेजोरिटी जो मिलते हैं हम वो सारे वेरिएशंस पढ़ेंगे। ऐसे अपर जोन लेटर्स है LBHD, अपर जोन में कितना बड़ा लूप बनाया, कैसा लूप बनाया, पतला लूप है, मोटा लूप है, क्या लूप है, वो सब चीजें अपर जोन के वो भी पढ़ेंगे हम लोग। अपर जोन के लेटर डी कैसा बनाया, लास्ट में एंड कर रहा है डी और डी टेढ़ा हो गया, तो उस आदमी से बच के रहिएगा, किसी का भी डी अगर आप देखें, क्योंकि वो आदमी काफी वायलेंट होने वाला है उस टाइम। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत चीजें छोटी छोटी, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया के लिए आपको बता रहा हूँ एक एक लेटर से कितनी चीजें हैं। अब लोअर जोन है, अब लोअर जोन अगर हम देखें, लोअर जोन की जो जनरली हम डिपिक्शन है, वो सारा आपकी फिजिकल लाइफ, आपकी सेक्स लाइफ, आपकी मनी, सेक्स एंड मनी बताता है ये आपका लोअर जोन के लेटर जितने भी। तो जी कैसा बनाया आपने, वाई के लूप कैसे बने, पी का लूप कैसा बन रहा है, ये सारी चीजें वो बताएंगी। और लूप पूरा बना, लूप आधा बना, लूप मोटा है, लूप छोटा है, सारे, और लूप हैवी कि नहीं है, ये सारी चीजें बताएंगी। ये भी बताएगा कि आप कितना ट्रस्ट करते हैं लोगों को, और ये भी बताएगा आपको कि आपने पास्ट मिस्टेक से कितना कुछ सीखा भी कि नहीं सीखा। सो दैट इज व्हाट लोअर जोन लेटर्स वुड टेल यू। अब इसके अलावा फिर एफ एक लेटर आता है। एफ लेटर अकेला एक ऐसा लेटर है जो तीनों जोन में प्रेजेंट है, अपर जोन भी है उसमें, मिडिल जोन भी है और लोअर जोन भी है। तो एफ के वेरिएशन बहुत सारे हैं, और हर एक की हैंडराइटिंग में आप पाएंगे लेटर एफ अलग तरीके से लिखा हुआ, और अलग तरीके से लिखा हुआ वो बहुत सारी चीजें बताता है। किसी का अपर जोन मिसिंग होता है, किसी का लोअर जोन मिसिंग होता है, किसी का मिडिल क्रॉस बार मिसिंग होता है, तो वो भी बहुत सारी चीजें बताएगा। सो एफ पढ़ना इज इन इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और टी सबसे इंपॉर्टेंट, ग्राफोलॉजिस्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2-3 लेटर्स हैं, एक उनमें से एक लेटर है टी। 50 तरीके के टी हैं, कैसे बनते हैं टी, 50 तरीके के टी हैं। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है विच इज योर पर्सनल प्रोनाउन आई, PPI बोलते हैं उसको ग्राफोलॉजिस्ट की लैंग्वेज में, PPI पर्सनल प्रोनाउन आई। आई आप कैसे लिख रहे हैं, हमने जो छोटा मिडिल जोन लेटर्स अभी मैंने बताया था आपको आई का, उसमें हम सिर्फ डॉट पढ़ते हैं, वो डॉट के लिए भी यूज होता है। एक्चुअल आई, जैसे आपने लिखा आई एम, तो आई कैसे लिखा, ये ही 50 तरीके का आई है। ये सब बताएंगे आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स, विद रिलेशनशिप विद योर मदर, मदर फादर के रिलेशनशिप में आप कितने इन्फ्लुएंस है, किससे क्या है आपकी लाइफ में चल रहा है, सब कुछ बताएंगे। आई तो 50 तरीके तो आई हो गए, 30 तरीके के सारे लेटर्स हो गए, तो लगभग आप। और फिर इसके बाद आते हैं स्ट्रोक्स, आप कैसा स्ट्रोक बना रहे हैं। 2 तरीके के स्ट्रोक बनते हैं, फ्लेक्सर स्ट्रोक एंड क्लब स्ट्रोक्स। तो क्लब स्ट्रोक से मतलब थोड़ा हम डेंजरस मानते हैं उसको, मतलब थोड़ा सा एजी होता है वो, और उसको सही से पढ़ना बहुत जरूरी है, स्ट्रोक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। ये एक्चुअल बताता है कि लेटर्स में जो आप लेटर लिख रहे हैं, वो तो लिख रहे हैं, आपने लेटर लिखा ए एंड ओ, बट अगर उसमें स्ट्रोक अगर आपका गलत है तो वो उतना ही कंटामिनेशन बताएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड का। तो स्ट्रोक पढ़ना बहुत बहुत जरूरी, और बहुत सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज। फिर एक आता है फेलेंस क्लॉ फॉर्मेशन, ये फेवरेट है हमारे किसी भी क्रिमिनोलॉजिस्ट का, कोई भी जो क्रिमिनोलॉजी करता है ग्राफोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सीधा फेलेंस क्लॉ देखते ही वो उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि ये तो ये आदमी इसी ने मर्डर किया होगा, इसी ये बिल्कुल मर्डरस हैंडराइटिंग है। क्लॉ हो गया, मेनियक फॉर्मेशन हो गया, ये सारे कुछ एक ऐसे नेगेटिव है, और किस जोन में बन रहे हैं, किस लेटर पे बन रहे हैं, उसके बारे में सारी चीजें बताते हैं, उस बारे में बताते हैं कितने नेगेटिव है। So claw formation and maniac formation is very important, which every writing हम हर राइटिंग में देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें, तो इतनी चीजें हैं एक ग्राफोलॉजी के अंदर, सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा और भी चीजें वो भी हम देखेंगे। सो एनी क्वेश्चन सो फार यू कैन अनम्यूट एंड आस्क।
before we move forward. किसी के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी डाउट, अभी तक कुछ भी, any questions, you can unmute and ask. Hi, this is Ruchika. May I ask? Yeah, please. Okay, first of all, I want to thank you because it's a very interesting presentation. And I'm a psychologist too. However, I know nothing about graphology. And the way you have explained it and each aspect also in detail, it seems to be a very interesting science to understand. Yeah, that is. And I wanted a little more clarity on so I understand it's very extensive, but when you say Phelon's claw and maniac formation, the last two, especially for criminology, you check. So does it really mean that if somebody is making this kind of a formation, they are declared criminal on the basis of So various parameters, but then this is kind of scary because anybody could have this. So yeah, I mean, so this is an early sign. This is one of the signs. अगर आपको किसी बच्चे में, or if you find these formation, and it is not just one formation. Wherever you find Phelon's claw formation, you will find strokes also very very edgy and sharp. Club strokes मिलेंगे उसमें. अगर दो तीन चीजें एक जैसी मिल जाती है, then you can come to conclusion, yes, this person has a problem in a particular area in his life. Or maybe he's having a grudge. I have seen this Phelon's claw formation in so many females who are going through a rough marriage. That doesn't make them a criminal, but they have a strong grudge against their any opposite sex, against their husbands or anyone, boyfriends or anyone. So the stress can also form this kind of a claw. So that can also, it is not necessary that, so there are two things. One is you are reading a handwriting and then you coming to a conclusion. One is you know the conclusion. मर्डर हो गया है और उसमें हैंडराइटिंग सैंपल मिला है, तब आप देख के बोलोगे हाँ इसी ने मर्डर किया है. So lot of earlier people used to write on the wall. जो serial ऐसे होते हैं, psycho cases होते हैं, they used to write on the wall, or they would leave a note somewhere. तो वहां पे मिलेंगे. And if it is persistent, if you are seeing these negative formations across, सब जगह देख रहे हैं और कई सारे लेटर्स पे एक जैसा दिख रहा है, then yes, you can come to conclusion that yes, this person either has committed a crime or might commit a crime on this particular way. So जैसे lower zone हम बोलते हैं, it is all about money and sex. So lower zone में Phelon's claw जब भी बनती है, then we say this person is cheating, guaranteed cheating. लोअर जोन में जैसे Y में या G में Phelon's claw देखेंगे तो आप बोलेंगे और चीटिंग नहीं कर रहा तो करने वाला है, और he is frustrated to an extent that he will probably cheat, or he will probably. Show up an example if you can during the presentation only. Plus, I'll be keen to know more about the course. Yeah, that I'll definitely tell you. So Phelon's claw formation ये होगा. अब मैं आपको एक I'll just show this. This is a random handwriting sample which I had. इसको मैंने ऐसे ही डाला. इतना सा handwriting sample और इसका analysis क्या निकलता है. Interesting person. The person is. This shows that the person is very very self-centered. बहुत ही self-centered है, inconsiderate है, selfish है. It is like I, me or myself person. इसको immediate result चाहिए, हर चीज अभी चाहिए, instant. और इसके पास बहुत अच्छी शर्ट्स होंगी, और इसको मतलब अपना मिडिल जोन जो है, सिंस इट इज अ मिडिल जोन हैंडराइटिंग मेजरली. आप मिडिल जोन कैसे हमने पता किया ये भी हम चेक कर सकते हैं. बड़ा जैसे आर लिखा हुआ है, कैपिटल आर है, ये आर भी मिडिल जोन जितने लेटर जितना एल है, एल भी मिडिल जोन में आया हुआ है. तो ये सारे मिडिल जोन हैंडराइटिंग, मिडिल जोन डोमिनेटेड हैंडराइटिंग है. तो कोई भी आदमी मिडिल जोन हैंडराइटिंग डोमिनेटेड लिखेगा तो उसका इंटरेस्ट ही मिडिल जोन को डेकोरेट करने में होगा. मिडिल जोन में क्या क्या चीजें आती है, नेक से नीचे लेके नेक से लेके वेस्ट तक. तो नेक से लेके वेस्ट तक ये दिस इज अ मैन. तो एक आदमी है, ये आदमी क्या करेगा मिडिल जोन में. मिडिल जोन में आदमी करेगा कि वो टाई अच्छी खरीदेगा, रंग बिरंगी टाइयों का शौक होगा, या शर्ट्स का शौक होगा. बहुत सारी शर्ट्स होगी, ट्राउजर्स कम होंगी लेकिन शर्ट्स बहुत सारी होंगी और अलग अलग कलर्स की होंगी. बिकॉज ही वांट्स you to look attractive through decorating the middle part of the body. इससे सिंपल एक इतना पता लगता है. और अगर फीमेल होती तो क्या करती, उसके नेकलेसेस बहुत होते हैं. द फीमेल वुड बी वेयरिंग अ लॉट ऑफ हेवी स्टोन ज्वेलरी. गले को डेकोरेट करना
वुड बी द फैसिनेशन, और वो उससे मिडिल जोन से आपको वो चीज भी पता लग सकती है। और भी बहुत सारी चीजें, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन यू गेट इनटू डिटेल्स, देयर इज लॉट यू कैन एक्चुअली टीयर द पर्सन अप कंप्लीटली। 100% एकदम एक्यूरेट रिजल्ट है ये, एंड इसमें कोई वो नहीं है, बिकॉज दिस हैंडराइटिंग विल नेवर से यू नो will never lie. Handwriting will never lie. And so if you can read the handwriting, you will also never lie. Maybe the person agrees or not, that is his choice, but you will get the correct picture 100%. So this person is egoistic, इसमें egoistic है person, इसकी लाइफ में किसी और की जगह नहीं है, ये सिर्फ अपने ही उसमें रहेगा। और स्पेस अगर आप देखें, इसमें जो लेटर्स के बीच में स्पेस है वो ज्यादा नहीं है, बट दो वर्ड्स के बीच में स्पेस बहुत सारा है, और ये लाइंस के बीच में भी बहुत सारा स्पेस है, विच इज वेरी हाई। ये पूरा पैराग्राफ इतने में खत्म हो सकता था, बट इसमें इतनी सारी लाइंस आई हुई, इतने कम लाइन से स्पेस ज्यादा है, तो विच मीन्स व्हाट, विच मीन्स द पर्सन इज नॉट वेरी, ये अपने आप में ही अपने को ही टाइम देगा सारा, किसी और के लिए टाइम नहीं देगा, किसी के लिए टाइम नहीं है इसके पास, और ये लोगों से भी एट आर्म्स डिस्टेंस रहेगा, ये मिक्सअप भी नहीं होगा जल्दी, एंड विच इज विद सेम ट्रेट हैज बीन सीन इन डिफरेंट एरियाज। अगर आप इसमें देखें, नोट करें, आई का डॉट मैं आपको बता रहा था, तो आई में यहाँ पे स्लैश है, इधर भी स्लैश है, यहाँ भी स्लैश, इट इज नॉट अ डॉट, एंड ऑल स्लैशेस आर लाइक दिस, गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो फ्यूचर को लेके थोड़ा सा ये परेशान है, एंड फ्यूचर में मतलब समथिंग इन द पास्ट व्हिच इज ट्रबलिंग हिम बिग टाइम। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इसमें निकल के आती है कि मतलब ये कि इसके आइदर ही हैज लॉस्ट हिज फादर रिसेंटली, और इसके फादर का साथ कुछ इश्यूज चल रहे, फादर से बिल्कुल नहीं बन रही अभी, ये एकदम निकल Can I ask? जी Hello. या प्लीज। Yeah, sir. आप सिर्फ हैंडराइटिंग एनालिसिस कराएंगे या फिर सिग्नेचर भी इसमें इंक्लूडिंग होगा? अभी आ रहा हूँ, सिग्नेचर पे भी आ रहा हूँ, अभी आऊंगा, सिग्नेचर भी कराऊंगा, डूडल्स भी कराऊंगा, नंबर्स कैसे लिखते हैं वो भी कराऊंगा। Okay. सब कुछ कवर्ड है कोर्स में, सब कवर्ड है कोर्स में, कुछ नहीं ऐसा बचेगा। बट हाँ, ये मैं पहले से आप लोगों में स्टैट्यूटरी वार्निंग जो डिस्क्लेमर होता है वो पहले डाल रहा हूँ। ये कोर्स थोड़ा इंटेंस है, ये हंसी मजाक करते हुए व्हाट्सएप कोर्सेज की तरह नहीं है कि आप करें और आपको याद हो जाएगा, सब सीख लेंगे आप। इसमें इन्वॉल्वमेंट पूरी चाहिए इसमें। तो मुझे पूछना है हाँ जी सर, एफ के लिए आपने क्या बोला, थोड़ा समझ में नहीं आया। एफ के लिए 3 जोन्स मतलब क्या, कैसे लिखा? F ऐसा 3 जोन्स लेटर, मिला के नहीं एफ ऐसा लेटर है कि वो तीनों जोन में आता है, एक ही लेटर ऐसा है जो तीनों जोन में आता है, मतलब अपर जोन भी है, मतलब मिडिल जोन भी है, उसको हम किसी भी एक जोन के लेटर के साथ क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो तीनों जोन में लेटर है और तीनों ही जोन के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। ओके। तो ये say that there's a problem with the father? हाँ, there is a problem with the father. How ये can सारी you, from where can you check? वेरी कैन यू चेक, ये इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी हाफ प्लेट इन्फॉर्मेशन है। प्रॉब्लम विद द फादर, प्रॉब्लम विद द मदर, हर एक चीज पता लग जाएगी। ये कोई एम्बिशियस आदमी नहीं है, ये आदमी सिर्फ बातें करेगा, बड़ी बड़ी करना है, एग्जीक्यूशन के नाम पे जीरो है। Hi, can I ask something? यस I just wanted to know कि आप ग्राफोलॉजी तो हैंड रिटन के हिसाब से करवा रहे हो, लेकिन अगर कोई इंसान टेक्स्ट पे लिखता है या फिर अगर वो लैपटॉप या नॉर्मल टेक्स्ट पे करता है, उसके अंदर भी फॉन्ट्स होते हैं, तो क्या हम वो भी पढ़ सकते हैं? देखो, उस पर रिसर्च चल रही है अभी, उस पर डिजायर्ड रिजल्ट नहीं है। मतलब ऐसा कि तुक्के पे अगर चलना है तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कितना आपने लेफ्ट मार्जिन छोड़ा, कितना राइट मार्जिन छोड़ा, बट अभी भी बहुत सा कुछ डिफॉल्ट पे चल रहा है। 4-5 साल और लगेंगे, जब पूरा ही मूव हो जाएगा उस पर, तो फॉन्ट्स हो गए, ना सिर्फ फॉन्ट्स, अब इटैलिक्स कितना लिख रहे हैं, बोल्ड कितना लिख रहे हैं, टी कैसा लिख रहे हैं, सारी चीजें आएंगी, बट अभी नहीं कर सकते उसको। और फॉन्ट्स आपके हाथ में है नहीं, वो कितने लोग फॉन्ट चेंज करते हैं, डिफॉल्ट फॉन्ट को कितने लोग चेंज करते हैं? अब देखिएगा, अगर आप कि अगर 100 लोग टाइप कर रहे हैं तो सब लोग या तो उसका डिफॉल्ट फॉल्ट आपका एरियल होता है तो उस पर लिखते हैं, या टाइम्स रोमन होता है तो उस पर लिखते हैं। मतलब 90% लोग उसी पे लिखते हैं जो लैपटॉप का डिफॉल्ट फॉल्ट होता है, बहुत कम चेंज करते हैं। चेंज वो भी प्रेजेंटेशन में करते हैं, और ये उसके थ्रू पता कर पाना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज इट इज नॉट, यू नॉट राइटिंग विद योर हैंड्स। ये आने वाले टाइम में ये थेरेपी की तरह यूज होगा हैंड राइटिंग,
कि आपको एक पेज रोज लिखना है। डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट बोलेंगे कि आपको एक पेज अपने थॉट्स लिखने हैं, बिकॉज यू डोंट आउटलेट ही नहीं मिलता लोगों को, टाइप करने में वो आउटलेट नहीं है। ये आने वाले टाइम में होगा, अभी वी डोंट हैव इनफ सैंपल। और अगर आपको कोई बोले ना कि हम जो जैसी फॉन्ट्स लिखी हुई हैं उसके बाद उसके हिसाब से बता सकते हैं आदमी के बारे में, तो बिल्कुल गलत है, वो तुक्का है। एंड आई डोंट ट्रस्ट इन दिस, मैं तुक्के पे मैं बिल्कुल मैं नहीं जाऊंगा, ना मैं एडवाइस करूंगा किसी को कि वो उस पे जाए। ऑलराइट, थैंक यू। अब सिग्नेचर पे आते हैं। सिग्नेचर कैसे हम एनालाइज करते हैं? सिग्नेचर में कितनी चीजें हैं। सिग्नेचर में एक असेंशन आता है, कैसा लिखा है, स्ट्रेट लिखा है, ऊपर जाता हुआ लिखा है, नीचे जाता हुआ लिखा हुआ, किस टाइप का सिग्नेचर लिखा है। तो दैट आल्सो टेल्स लॉट अबाउट अ पर्सन। स्लांट पे जाते हैं, लेटर कैसे लिखे हुए, राइट लेफ्ट बैकवर्ड, ये भी साइज कैसा है। अब कुछ चीजें इसमें हैं जो आपको 2-3 हैंडराइटिंग 2-3 लाइनें लिखवाने के बाद साइन कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि हैंडराइटिंग से कंपेयर करेंगे सिग्नेचर को तो बहुत सारी चीजें पता लग जाती है। कितना झूठ बोल रहा है इंसान ना, वो उसकी झूठ और सच, ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी, सिर्फ और सिर्फ आप अगर सिग्नेचर कितना कैसा लिखा है, सिग्नेचर और हैंडराइटिंग का साइज आप देख लेंगे, स्लांट्स देख लेंगे, उसका प्रेशर देख लेंगे, तो आपको पता लग जाएगा। ये बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत ही छोटी चीज है, और 1 मिनट में पता लग जाती है कि कितना ये अपनी चीजों में डिसऑनेस्ट है। और एक चीज फैक्ट है, अगर आदमी एक चीज में डिसऑनेस्ट है, ऑल द मोर प्रोबेबिलिटी वो आगे भी बाकी चीजों में डिसऑनेस्टी दिखा सकता है। वेरी रेयर कि वो ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी, यही सब चीजें, इसीलिए सिग्नेचर में जितना पता लगता है, सेम चीजें न्यूमरोलॉजी में पता लग जाती है बड़ी आसानी से। तो न्यूमरोलॉजी के साथ भी हम उसको मैच करके देखते हैं। हमारे न्यूमरोलॉजी वाले कोर्स में, मेरे न्यूमरोलॉजी वाले कोर्स में सिग्नेचर एनालिसिस पूरा का पूरा इंक्लूडेड है। प्रेशर है, कितना प्रेशर आपने डाला हुआ है सिग्नेचर करते हुए समय, वो प्रेशर है। अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, आप किसी से भी 3 लाइनें लिखवाइए, उसके नीचे साइन करवाइए, और देखिए साइन कहाँ कर रहा है वो, कितना गैप छोड़ रहा है लिखने के बाद। अगर वो इमीडिएटली जहां लिखा है उसके नीचे इमीडिएटली साइन कर रहा है, तो इसका मतलब जो लिखा हुआ है उसको वो ट्रस्ट करता है, उस पर वो बिलीव करता है, एंड वो सच लिख रहा है एक तरीके से। अगर वो दूर लिख रहा है, साइन दूर करता है उससे, मतलब जैसे मान लीजिए 2-3 लाइनें उसमें बीच में आ सकती हैं, और फिर वो साइन कर रहा है, इसका मतलब वो उससे जो लिखा है उससे वो उसको बिलीव नहीं करता, उससे वो इत्तेफाक नहीं रखता, और वो साइन नहीं करेगा, और वो साइन जो है डिले करेगा। दैट इज व्हाट साइन इज। वो सिग्नेचर का आपको बेसिक सा पता लग जाएगा, सिग्नेचर की सही लिखा, सिग्नेचर किस साइड पे किया है, लेफ्ट हैंड साइड पेज पे किया है, राइट हैंड साइड पेज पे किया है, ऊपर किया है, नीचे किया है, इससे भी पता लग सकता है। लव लेटर्स और ऑफिशियल लेटर्स में डिफरेंसेस पता लग सकते हैं कि किस तरीके से साइन कर रहे हैं उस लेटर के, कैसा सा सिग्नेचर किया, दैट आल्सो यू कैन नो। इसमें भी जोन्स है, अपर जोन सिग्नेचर, लोअर जोन सिग्नेचर, कनेक्शंस, फिर कनेक्शंस है, इसमें कनेक्टेड सिग्नेचर है, अंडर कनेक्टेड, अंडरस्कोर्स कितने लाइन, जैसे हमने पीछे एक सैंपल देखा था, इस सैंपल में 2 लाइनें लगी हुई है नीचे। जब भी आदमी नीचे लाइन लगाता है सिग्नेचर के नीचे, इसका मतलब होता है उसको सपोर्ट चाहिए, ये सपोर्ट मिला हुआ है। और जो 2 लाइनें लगाता है, इसका मतलब उसे अपने ऊपर, ये ऐसे वो लोग होते हैं जो गाड़ी लॉक करते हैं, फिर जाते हैं बाहर, फिर वापस आते हैं, फिर देखते गाड़ी ठीक से बंद हुई कि नहीं हुई, घर का ताला 2 बार चेक करेंगे। तो ऐसे लोग जो मतलब दे नीड डबल एश्योरेंस ऑन एवरीथिंग, तो ये ज्यादा सिक्योरिटी, तो इनसिक्योर होते हैं, बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं। तो वो चीज भी बताता है। और सिग्नेचर और हैंडराइटिंग दोनों एक चीज बता रही है अगर आपकी, तो देन यू कैन बी वेरी श्योर अबाउट दैट व्हाटएवर यू आर सेइंग, बट देयर इज अ डिफरेंस। सिग्नेचर और हैंडराइटिंग में एक बुनियादी डिफरेंस है। हैंडराइटिंग सबकॉन्शियस है, सिग्नेचर कॉन्शियस है। आप जब भी साइन करते हैं तो आप प्रैक्टिस करते हैं उस सिग्नेचर की। आपने बचपन में बहुत पेजेस भरे हैं सिग्नेचर की साइन प्रैक्टिस करते करते, और अब भी आप खाली बैठे होते हैं तो कई बार अपना नाम ही स्क्रिबल कर रहे होते हैं, सिग्नेचर ही कर रहे होते हैं उस पे पेज पे। तो सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर कर रहे हैं अगर आप, तो सिग्नेचर इज अ प्रैक्टिस्ड फॉर्म। आपसे कोई भी बोलेगा सिग्नेचर साइन करके साइन कर दो, ऑटोग्राफ दे दो, साइन कर दो, तो आप 1 मिनट के लिए कॉन्शियस हो जाएंगे, फिर अपनी फॉर्मेशन आप देखेंगे, चाहे वो वैसे ही हो, कोई फालतू सा आदमी भी हो, बिल्कुल मॉल में भी जैसे मिल जाते हैं लोग ना, साइन कर दीजिए, या कुछ कहीं पे आपको साइन करना, आपको मालूम है कोरियर वाले को मैं ऐसे एक लाइन खींच के भी दे दूंगा, चल जाएगा, फिर भी आप साइन करते हैं। जब आप साइन करते हैं तो आप थोड़े से कॉन्शियस होकर साइन करते हैं। तो जो कॉन्शियस है ना, 1 सेकंड का भी जो कॉन्शियसनेस है, वो बहुत कुछ बताता है। इसी तरीके से जैसे मैंने ना आई डॉट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉट के लिए आपको हाथ उठा के वापस डॉट डालना है। वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होगा आपके लिए, लेकिन वो जो कैलकुलेशन दिमाग में चल रही है उसके लिए बहुत बड़ा एफर्ट है। वो उठा के वापस आई के स्टेम ढूंढना कहाँ पर है, और फिर उसके ऊपर वो डॉट डालना। सो दैट इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग, दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मेंटल एफर्ट। तो ऐसी सिग्नेचर में भी, तो सिग्नेचर में कहाँ पे क्या वो
लाइन मार रहे हैं आप, क्या आप कौन से उसमें है, कितने टाइप के अंडरस्कोर्स मार रहे हैं, क्या चीज, कितने, मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वेवी टाइप का है, कैसा अंडरस्कोर है वो पता लगे, वो भी देखना। ओवर स्कोर, कुछ लोगों की आदत होती है अपने एक लेटर को ऊपर से पूरी ऐसे अम्ब्रेला बना दिया, छतरी बना दिया पूरा, अपने सिग्नेचर को नीचे कवर कर दिया। तो वो जो सिग्नेचर के ऊपर करते हैं उसके बड़े मतलब है कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर हो गया डॉट्स, कुछ लोगों को आदत होती है 1 डॉट डालने की, 2 डॉट डालने की। डॉट 1 डॉट है या 2 डॉट है, उनके अलग मतलब है। कहाँ पर डॉट डाला है सिग्नेचर के अंदर, उसका अपना अलग मतलब है। तो डॉट का सिग्निफिकेंस ही पूरे का पूरा अलग है। डॉट डालने चाहिए कि नहीं डालने चाहिए, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, बट वो डालने चाहिए नहीं डालने चाहिए वो बाद में करेंगे। क्या करना चाहिए, दैट्स अ पार्ट ऑफ रेमेडियल। फिर आता है एनाटॉमी ऑफ सिग्नेचर। एनाटॉमी ऑफ सिग्नेचर का मतलब होगा कितने पार्ट्स ऑफ सिग्नेचर। अगर आपका नाम है भैरव सिंह शेखावत, 3 नाम है आपके, सुशांत सिंह राजपूत, तो आपने क्या नाम अपने वो किया है, कितने आपने, 3 नाम लिखे हैं, 2 नाम लिखे हैं, 1 ही नाम लिखा है, सिंगल लेटर लिखा है नाम का, डबल लेटर मतलब कि पूरा का पूरा लेटर लिखा है, किस चीज को लिखा है, वो भी आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स के बारे में, आपके बहुत सारी चीजों के बारे में वो नाम आपका जो साइन आपने किया वो बता देता है, बहुत सारी चीजों में। एंड आई गिव दिस सिग्नेचर करेक्शन एज अ थेरेपी टू पीपल, क्योंकि ये दिस इज अ ब्रिलियंट थेरेपी। एस्ट्रोलॉजी के जो उपाय आप करते हैं 40 दिन तक आप जाके गाय को खाना खिलाएं या कबूतर को दाना डालें, उससे अच्छा है कि आप 40 दिन बैठ के अपना सिग्नेचर ठीक कर लें। आपका सबकॉन्शियस पैटर्न ऑफ थिंकिंग जो है ना, आपका जो एक्चुअल जो लाइफ में चेंज आना है वो चेंज हो जाएगा। हैबिट्स जो चेंज होनी है, जो नहीं होती हैं, वो सिग्नेचर आप ठीक कर लें, सारी हैबिट्स ठीक होंगी। क्यों? क्योंकि आप अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को कंटिन्यूस सिग्नल देते हैं। When the moment you write consciously, you are giving a signal to your subconscious mind that this has changed. So this has changed. You are changing it effort by making an effort. तो वो एफर्ट और वो चेंज, छोटा सा चेंज भी जो है ना वो बताया था। अब आपकी लाइफ में मान लीजिए रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं रिलेशनशिप इश्यूज लेके, उनके लेटर्स हम देखते हैं, उनके लेटर्स हैंड राइटिंग में एक लेटर देखें अगर हम, तो हमें पता लग जाए वो उनकी रोमांस लाइफ, रोमांटिक लाइफ कैसी चल रही है, विच इज लेटर के। केक ऐसा बना हुआ है ना, उस पर पता लग जाएगा कि उसकी लाइफ में की हाउ रोमांटिक इज ही, और उसकी लाइफ में रोमांस या उसकी लाइफ में जो फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप है वो एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। और बहुत सारी टाइम पे तो दैट इज द सोल रीजन फॉर प्रॉब्लम इन अ रिलेशनशिप। सो दैट इज ऑल्सो इजिली सीन एंड क्योर्ड। उससे उनसे वो लेटर्स बनवा लेते हैं। आई गिव लॉट ऑफ के वाले लेटर्स टू पीपल टू राइट in a particular fashion, and then that is, and मैं बोलता 3 महीने कम से कम करना पड़ेगा। 3, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, 3 महीने 6 महीने, because it is something which you are doing it for life, and because you have been doing something different। अभी तक आप जो करते आ रहे हैं इतने दिनों तक, उसको चेंज करना है आपने कंप्लीटली, टेम्परेरी नहीं, कंप्लीटली चेंज करना है। उसको चेंज करने में थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, तो वो आप देंगे, आपका वो चीजें सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। तो एनाटॉमी ऑफ सिग्नेचर होगी। फिर एनसर्कलिंग है, बहुत सारे लोग सर्कल बना देते हैं नाम के ऊपर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, इसमें भी न्यूमरोलॉजी के साथ भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे ये हम सिग्नेचर देख के, अपना डेट ऑफ बर्थ देख के आप सिग्नेचर बताएंगे उसको, कैसे सिग्नेचर देख के आप बताएंगे इसके डेट ऑफ बर्थ में ये वाला टाइम चल रहा होगा अभी न्यूमरोलॉजी में, या फिर ये वाली चीजें इसकी डेट ऑफ बर्थ में है। एंड इसमें सिग्नेचर भी वैसा ही करा हुआ है, क्योंकि उससे भी एक तरीके का पता लगता है आपका नेचर कैसा है, आपका किस तरीके की सोच है, और जब सिग्नेचर देखेंगे तो भी आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा। ओवरलैपिंग एंड स्टेम शेयरिंग। तो ओवरलैपिंग, कई बार एक के ऊपर एक नाम, हस्बैंड ने वाइफ से सोचा मैं अपना नाम के ऊपर अपने हस्बैंड का नाम लिख लूं, NM एक ही से ऐसा कर दूं, UV एक जैसा कर दूं, कुछ भी ऐसा एक खिचड़ी सी बना देते हैं, एंड की इट शोज लव फॉर माय हस्बैंड, और उसका मतलब ही पूरा अलग निकल जाता है। इतने अलग मतलब इतने रिलेशनशिप इश्यूज दिखते हैं इसमें, जब भी आप देखेंगे ये ओवरलैपिंग या स्टेम शेयरिंग मेजर इश्यूज, तो वो सब सॉल्व हो सकते हैं, इजीली सॉल्व हो सकते हैं। फिर बाइलिंगुअल, दो भाषा में सिग्नेचर करना, ये भी इंटरेस्टिंग चीज है। फिर स्क्रैच करना या इलेजिबल सिग्नेचर। लोग सोचते हैं मैं बिना मेरा सिग्नेचर कोई पढ़ ना पाए, मतलब ऐसा सिग्नेचर करेंगे वो पढ़ ना पाए। अब वो सभी को लगता है कि वो RBI के गवर्नर है, कि नोट पे उनका सिग्नेचर होता है, इसलिए उनका कोई सिग्नेचर पढ़ नहीं पाएगा, कॉपी कर लेगा तो वो RBI से पैसा निकाल लेगा सारा। बट ऐसा होता नहीं है, जितने इलेजिबल सिग्नेचर बनाते हैं उतना ही ईजी होता है उसको कॉपी करना। जितना इलेजिबल सिग्नेचर होगा उतना ईजी है। जब आप इसके एडवांस में जाएंगे ना, जब बड़े बड़े फॉर्जरीज होती है कि जाली साइन करके कर लिया, तो वो तो खैर अब तो खैर उसके वो आ गए हैं, सॉफ्टवेयर आ गए हैं विच विल टेल यू द एग्जैक्ट प्रेशर ऑफ द पेन,
कि आपने सिग्नेचर बनाते समय ओरिजिनल सिग्नेचर में प्रेशर कहाँ कहाँ पे ज्यादा आता है, कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ द सिग्नेचर, मतलब एक लेटर लिखा है, अगर मान लीजिए सिर्फ आपने सिर्फ एक लेटर लिखा, मान लीजिए मोदी लिखा आपने, मोदी के अंदर एम के अंदर किस जगह पे कितना प्रेशर आया है, वो भी मेजर हो जाता है आजकल सॉफ्टवेयर से। तो वो तो खैर फॉर्जरी वगैरह, हाई लेवल फॉर्जरी वगैरह डिटेक्ट करने में फॉरेंसिक्स यूज करते हैं, तो वो चीज है। हम तो बेसिक सिग्नेचर से अपना अपनी लाइफ को, लोगों की लाइफ को थोड़ा बहुत कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या क्या चीजें देख सकते हैं हम, वो चीजें सिग्नेचर से हम पढ़ सकते हैं। तो सिग्नेचर एनालिसिस का देख करके, और अगर आपको ग्राफोलॉजी वो आते हैं, लेटर्स पढ़ने आते हैं, लेटर्स तो वही है, तो लेटर्स से आप सिग्नेचर के अंदर भी सिग्नेचर पढ़ना आपको और अच्छा से आ जाए, बहुत ही बढ़िया तरीके से आएगा अगर आप सिग्नेचर पढ़ते हैं तो। सो दैट इज व्हाट सिग्नेचर एनालिसिस। नाउ वी कम टू डूडल्स। अब आपने देखा होगा बहुत टाइम पे जब आप खाली बैठे होते हैं या आप किसी से इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं फोन पे, तो आपके हाथ सामने पेन और पेपर आ जाए, तो अब उसमें बिल्कुल एकदम आप, हम सभी का अहमद हुसैन जो है वो जिंदा हो जाता है, और हम कुछ ना कुछ पेंटिंग ड्राइंग कुछ कर लेते हैं। मैंने बहुत देखा, मैं बहुत करता था जब मैं अपने कॉर्पोरेट टाइम में मीटिंग में बैठे, या किसी भी फंस जाओ कहीं किसी कॉर्पोरेट मीटिंग में, तो उसके अंदर भी अगर आप बोर हो रहे हैं, आपका कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है नहीं, आपका टाइम निकल गया, आपने आपका जो पार्ट था वो हो गया, आप वेट कर रहे हैं मीटिंग एंड होने की, आपके सामने किसी होटल का कुछ वो पैड वैड पड़े हैं, या कहीं आप किसी जगह बैठे हो जहाँ कॉपी पेन है, तो आप कुछ भी बनाना शुरू कर देंगे। बट वो कुछ भी जो बनाते हैं ना, उसका बड़ा मतलब है, वो इजी, वो कुछ भी नहीं बनाते आप, वो बताते हैं कि आपके दिमाग में इस टाइम चल क्या रहा है। अब जैसे मैंने ये फेस बना हुआ है, किसी ने फेस बनाया और फेस बना के छोड़ दिया, अब ये फेस क्या कह रहा है। अब आपने ये भी देखा होगा, बहुत सारे लोग जो है, लोगों में आदत होती है कि वो अपने न्यूज़पेपर में जो फोटो निकलती है, हीरो को हीरोइन बना देते हैं बिंदी और मेकअप करके उसका, या हीरोइन की दाढ़ी मूछें बना देते हैं। अब ये मैं आप लोगों को एक और टिप दे देता हूँ, जो जब भी आप देखें किसी का भी कहीं पर भी कोई बच्चा कर रहा है, कोई बड़ा कर रहा है, कोई भी कर रहा है, आप भी कर सकते हैं, हो सकता है आप भी किसी का चेहरा खराब कर रहे हो न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, या रिसेंटली किया हो। अगर ऐसा कुछ किया है आपने, तो लड़की का किया है अगर चेहरा खराब, तो इसका मतलब ये है कि आपकी नियर एंड डियर किसी ना किसी इमीडिएट फैमिली, आई एम टॉकिंग अबाउट इमीडिएट फैमिली, और मतलब कि आपकी लड़की का क्या मतलब हो सकता है, मदर है, सिस्टर है, वाइफ है, उससे आपको प्रॉब्लम हुई, उससे आपकी लड़ाई हुई है, यू आर नॉट लाइकिंग हर एट ऑल, जो जिस तरीके से उसका बिहेवियर चल रहा है आप उसको नहीं एग्री करते हैं, उससे आप नहीं करते, इसलिए आपने किसी लड़की का चेहरा खराब किया। आपके सामने तो ऑप्शन थे बहुत सारे, बट आपने लड़की का चेहरा, और अगर आपने लड़के का चेहरा खराब किया, तो इसका मतलब आपकी लड़ाई हुई है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप किसी भी मेल पार्टनर से, फादर से, ब्रदर से, कलीग से, वेरी क्लोज कलीग, किसी से भी हो सकता है, बट इन अ वेरी वेरी क्लोज सर्कल। ऐसा नहीं कि बहुत दूर से किसी से हुआ ना, ये सबकॉन्शियस माइंड को उतना याद नहीं रहता, ये हेयर एंड नाउ वाली इमीडिएट वाली चीजें हैं। तो वो अगर आपका किसी से लड़ाई वगैरह हुई है, तो वो आपका डूडल्स में रिफ्लेक्ट करेगा, वो तब वो आप डूडलिंग कर देंगे, किसी की चेहरा खराब कर देंगे, जिसका चेहरा खराब कर रहे, लड़की है तो लड़की से प्रॉब्लम, लड़का है तो लड़के से प्रॉब्लम। तो ये आप चेक करिएगा, देखिएगा किसी का, अगर आपने देखा हो तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आपको मिलेगा। दूसरा, अब जैसे फेसेस बनाया, कौन कौन सा डूडल बनाया, 50 तरीके के डूडल आइडेंटिफाइड है कि किस तरीके की डूडलिंग हो रही है, हमने मोटा मोटी उसी को हम बनाने को, तो आप कुछ भी बना सकते हैं, शेडिंग कैसे कर रहे हैं, कितनी शेडिंग करी, डार्क शेडिंग है, लाइट शेडिंग है, कई बार तो शेड करते करते वो पेपर ही फाड़ देते हैं, ऐसा भी शेडिंग होती है। तो वो शेडिंग किस तरीके की हो रही है, डूडल किस तरीके का बन रहा है, मतलब क्या बना रहे हैं, कोई चेहरा बना रहे हैं, कोई आप वो बना रहे हैं। अब जैसे ये है, चेहरा बनाया आपने, कोई स्माइली बना रहे हैं, बैठे बैठे स्माइली बना रहे हैं, खुश है, तो मतलब आप भी खुश हैं, अंदर से आप कुछ अच्छा हुआ है भी, तो इसलिए आप खुश हैं, और इसलिए आप स्माइलीज बना रहे हैं। किसी फेस में आप गुस्सा दिखा रहे हैं, एग्रेशन दिखा रहे हैं, तो मतलब आपका कुछ रूट ऑफ डिफिकल्ट जो कुछ है, प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं हो रही है, स्टिल स्टक इन अ प्रॉब्लम। जैसे इसमें हैट दिखाई हुई है, तो व्हेन अ हैट कवर्स द हेड और ऑन वन आई, द राइटर इज शोइंग सेल्फ प्रोटेक्टिव स्ट्रीक, उसको प्रोटेक्शन चाहिए। तो सेल्फ is always an extension of ego, whether it is complementary or not. अगली और गंदा चेहरा बनाएंगे, कोई कुछ लोगों की आदत है आंखें बनाने की, लिप्स बनाने की, हार्ट बनाने की। अगर दिल बना रहा है तो मतलब आदमी इज इन लव, इज इन द एयर, इश्क में है इंसान, इसलिए दिल बना रहा है। कोई आदमी कुछ और बनाता है, अलग अलग तरीके से चीजें, तो जो जो बना रहा है उसके हिसाब से हम वी कैन क्लब दोज थिंग्स
and we'll study all that also. So 50 तरीके के लगभग पैटर्न्स हैं डूडल्स के जो हम पढ़ेंगे. हर तरीके स्टार्स बना रहा है. हाँ जी. Somebody want to say something? चलिए. So अब this is what we will do. We'll do numbers also. कि numbers कैसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैसे लिखा हुआ numbers. Numbers basically आपकी लाइफ में numbers है तो मतलब पैसा है. तो numbers बताते हैं कि आप पैसे को या मनी मैटर्स को कैसे हैंडल करते हैं. वो अलग अलग तरीके से अलग अलग नंबर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम नंबर्स करेंगे. सो नंबर्स भी बात करेंगे, बाकी सारी चीजें हम बात करेंगे. तो एनी क्वेश्चन सो फार एनीवन, आई विल बी हैप्पी टू आंसर. फिर मैं आपको कोर्स की डिटेल्स बता देता हूँ. कोर्सेज दिस इज फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो वी आर स्टार्टिंग ऑन वीकेंड बैच. मॉर्निंग 11 AM दिस विल स्टार्ट ग्राफोलॉजी का. तो फीस इज 15,000 विच विल कवर एवरीथिंग. इसमें मैं आपको 5 बुक्स का PDF ग्राफोलॉजी के ऊपर 5 डिफरेंट बुक्स, एक्सीलेंट बुक्स जो आपको मार्केट में नहीं मिलेंगी वो वाली बुक्स वो, और 10 से आई एम राइटिंग 10 बट देयर आर मोर देन 10 रिसर्च पेपर्स ऑन graphology which I will be sharing with you. All the recordings will be available and the course material is also available. So everything will be given to you with the course. And signature analysis as a separate course. People have demanded me signature analysis karna hai, doodle analysis karna, because a lot of these courses do not cover all these things in that detail. So inke do alag alag courses hain, which is 3,000 and 2,000. Which is one class and 2 classes we can cover signature analysis. But I would request कि अगर आप लोग पूरा करें then it is the best thing to do, because then you will have complete understanding and it is a serious subject. तो थोड़ा सा seriousness चाहिए इसको पढ़ने के लिए and थोड़ा involvement भी चाहिए पढ़ने के लिए. थोड़ा boring भी है, मैं यही बता, थोड़ा सा boring भी हो जाएगा. It is too much into reading, so थोड़ा, but it is very interesting. अब जब आप उसके results आप देखेंगे, अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, रिजल्ट्स देखेंगे, इट इज एक्सेलेंट. इट गिव्स यू एक्सेलेंट रिजल्ट्स, मच बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ knowing a person. So any questions, I'm there to answer. Sir, this graphology course includes signature and doodles, or we have to do it separately? No, only? it includes everything. So then the signature and the doodle course is not required separately, No, right? because a lot of people are asking for this. ये सिर्फ इतना करना है तो वो कर दो, कैसे करना है. And this is just a Saturday Sunday class. हाँ, Saturday Sunday class. And if I miss starting this Sunday, will I get a recording of the course? हाँ, you will get recording of all the classes. Okay. And post the course, in case there's a query or something, then you're So there is available for help, or? I will be available for help every time. Maybe I am not able to answer the question immediately, but I will 100% answer all the questions. I answer all questions of all my students. Astrology, numerology, graphology, कोई भी हो, कभी कभी. So Okay. that you can be rest assured. So Okay. Gurmeet Kaur has written कि I have made heart in place of dots of alphabet I. So that generally means that you love is in the air. मैंने बोला ना heart बनाया आपने तो मतलब love is in the air. So either you are in love with someone, or you are probably in a new relationship or something. You're a very loving person. You are a very loving person. You generally are a very loving person. Starting 11 AM and ending time? हाँ, कितने आवर्स की क्लास रहेगी ये 1.5 घंटे की, 1.5 से 2 घंटे. At times मतलब minimum तो मतलब 1.5 to 2 hours to 1 hour 45 minutes रही, उससे 1.5 से 2 घंटे की रही. So whoever is interested, please let us know. You can message on the group, or admins को आप message कर सकते हैं, and we'll let you know. Right. So thank you so much. Thank you so much for joining in. And please do share your feedbacks on the group. कि कैसा, how was the class? Thank you so much.
Thank you, sir. Thank you.